चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहब रुक जाए खुदा के लिए। आइन का तो आपने परखचे उड़ा दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब अभी नौआमूज था, एक बरोही थे, अल्लाह बख्श खुदा बख्श बरोही, डॉक्टर थे फिलॉसफी में और फिर वो वकील थे, नामवर वकील। उनको हम बुला के पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर सुनते और हमारा ईमान ताज़ा हो जाता, मजबूत हो जाता। एक बुरई साहब से हैं, वो हमारे ज़हनों पर इस्लाम की, मॉडर्न इस्लाम की छाप लगा देते। इत्तेफाक से ज़ियाउल हक की काबीना में वो भी वजीर थे, मैं भी वजीर था, तो वो ज़ियाउल हक को सामने बिठा के कहते थे कि मैं रात रोज़े रसूल पे था और मैंने देखा रोशनी का ह्योला आपके इर्द गिर्द मौजूद है और मुझे यकीन हो गया कि आप इस मुल्क के निजात दहिंदा हैं। आपकी आंखों में आज भी नूर है जो रोशनी बन के पाकिस्तान को भी रोशन कर देते हैं। अब ये एक बरोही जो हमारा ज़हनी तौर पे तो पता नहीं क्या समझते थे, वजारत के लिए इतनी खुशामद कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये इस मुकाबले में हम तो आ सकते ही नहीं है, और मैंने जितनी जल्दी मौका मिला ज़ियाउल हक की काबीना से निकल गया। अब मैं जब तकरीरें सुनता हूँ शहबाज शरीफ साहब की, खुदा की कसम घिन आती है मुझे। कमांडर इन चीफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अब देखें उनकी शक्ल देख लें, शहबाज शरीफ साहब की मुंह देख लें, उनके हाथों की हरकत और सकनात देख लें, सब कुछ उनको तो मिल गया है, लेकिन ज़मीर होता है, वो ज़रूर कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो। नाम के ही सही वजीर आज़म तो बन गए, 2 दफा बन गए, लेकिन वो बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, फिर उनके हमनवा होते हैं, वो कवाली वो करते हैं, फिर उसके हमनवा होते हैं। हमनवा जो है वो जो बहुत तकरीरें करते हैं, बड़ी दुख होता है। मैं तो इन लोगों के साथ रहा हूं, मैं कोई एक बात ये कह दें शहबाज शरीफ साहब या ख्वाजा आसिफ साहब या
دوسرے کہ میں نے کبھی کوئی خوشامد کی ہو. نواز شریف کے ساتھ 35 سال رہا ہوں تو اس کو کبھی ہمیں یہ مکھن لگانا آیا ہی نہیں تھا، بلکہ سخت سے سخت تنقید کرتے تھے کیبنٹ پہ بیٹھ کے. اب میں نے یہ بات کیوں چھیڑی ہے؟ یہ جو کمانڈر ان چیف آتے ہیں ان کو شروع میں پرابلم ہوتا ہے کہ ہم تقریر کیسے کریں، لوگوں سے رابطہ کیسے کریں. اس کے لیے لوکل باڈیز کے الیکشن کراتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، لیکن ان کو ایک فورم مل جاتا ہے اور یا اس طریقے کے ان کے ارد گرد کے جو وہ تقریر کرتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کمال کر دیا آپ نے تو جی ایسی تقریر تو کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی نہیں کر سکا. آپ کی گفتگو قرآن کی آیات اور یہ وہ ساری ملا کے آپ تو ولی اللہ لگتے ہیں. آپ تو وہ ولی کیا، آپ غوث تو بن گئے ہیں. آپ کے آنکھوں سے روشنی باہر آتی ہے. یہی ضیاء کو کرتے تھے. تو یہ ایک خوش آمدیوں کا ٹولہ جو اس کو عاصم منیر کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ بھی نہیں تھا وہ بھی نکال کے ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مجھ سے زیادہ باصلاحیت کون ہے، میں تقریر بھی کرتا ہوں تو لوگ تو رونے لگ جاتے ہیں. اب اس کا ہاتھ ذرا کھول رہا ہے، تقریر کرے گا اچھی بری لیکن ہر وقت بولے گا. اب کل سے 2-3 فنکشن میں وہ تقریریں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو مستقبل ہے وہ میں کیا کروں. آپ لوگ کہتے ہیں بھائی میرا آپ سب کہتے ہیں کہ میرا 77 سال کی اگر میری عمر ہے 76 کی 77 کی 78 کی تو پھر ان بوڑھی کا آنکھوں نے سب کچھ ہوتے دیکھا ہے. میں نے ڈھاکہ کے اندر اپنے فوجیوں کے طرف سے اپنے بنگالیوں کو گولیاں مارتے دیکھا ہے. میں کیا کروں؟ وہ میں اپنی بوڑھی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ میں نے اپنے آنے والی نسل کو منتقل کرنا ہے. میری آواز کچھ دوست بار بار کہتے ہیں کہ میں کہوں اپنی ٹیم کو کہ میری آواز کو زیادہ طاقتور بنا کے دیکھیں، مائک سیدھا کریں. آپ کہتے ہیں اندر سے میری جتنی آواز ہوگی تو وہی آئے گی نا. کسی وقت میرے اوپر جو ہوتا ہے وہ تقریر میں رکاوٹ بنتی ہے ورنہ تقریر کا تو میرا تو رستہ یہی تھا. اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا ایک سٹیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب وہ مکمل چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر بن چکا ہے جو ہمارا وہ ہے عاصم منیر. کوئی آدمی اس کو اس لیول تو اب وہ پسند بھی نہیں کرتا کہ میں کمانڈر ان چیف کہہ رہا ہوں. وہ یہ پسند کرے گا میں چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں، تب جا کے اس کی پیاس بجھے گی. وہ پیاس اس کو لگا دی ہے اور یہی طریقہ کار ہے. ضیاء کے ارد گرد بھی اسی طریقے کی باتیں ہوتی تھی. وہ 10 سال تو نکال جاتے ہیں نا، کچھ آتا ہو نہ آتا ہو. کبھی کوئی ڈھنگ کی تقریر ساری عمر ضیاء نے نہیں کی. یہاں ملتان میں اتنی گندی تقریریں کی کہ لوگ جو ہیں بھاگ پڑے اس کو دبانے کے لیے، مارنے کے لیے. پھر مجھے دے دیا انہوں نے اور میں نے ایڈریس کیا تو لوگوں کو میں نے کہا یار سیلاب ہے اور ملتان اس کے اندر بہہ رہا ہے،
अब तुम अपने जज्बात में आकर सारी चीज़ों को ख़राब मत करो, इनसे मुतालबात करते हैं। और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहब उनको हमें मुल्तान को बचाने के लिए वो चीज़ें फराहम करें जो जो जिसको जो चाहिए। रोज़गार के लिए भी कोई उनको बना के देंगे कि ये है, लोगों को रोज़गार फराहम करें। तो लेकिन जावड़े ने कहा ये मैं ना भी दूँ, इस कौम ने तो मुझे कबूल कर लिया। 10 साल बैठा रहा। जुल्म मुतादी जो होगा औरों के लिए होगा, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। जब मैं उनकी काबीना को छोड़ चुका, मेरे खानदान पर भी अताब आया, क्योंकि होता यही है कि जो उनके साथ चल पड़े वजारतें भी होती हैं, जो ना चले तो फिर उसके ऊपर वो एजेंसियों को बिठा देते हैं कि यही बंदा खतरनाक हो सकता है। आप पढ़े उनकी जनरलों की किताबें लिखी हुई हैं लोगों ने। तो ये एक सूरत हालात में हम चल रहे हैं। जो कमांडर इन चीफ है वो इस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है, तकरीर करनी उसे आ गई है। कुरान हकीम का वो हाफिज है। अब भुगते, कौम भुगते इसको, 10 साल भुगते। कौम बेचारे लाते वो नहीं है, जरा को हम लेके आए थे। लेकिन ये तो हमारे जो ये चंद एक लोग होते हैं, शहबाज शरीफ जैसे, और पूरी पार्टी, वहां तो पूरी पार्टी है। शहबाज शरीफ और हम नवा हैं, कवाली कर रहे हैं, तो वो फिर उसका दिल भी चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा। तो मैं फिर आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहब रुक जाए खुदा के लिए। आइन का तो आपने परखचे उड़ा दिए हैं। माशाल्लाह लगने से पहले माशाल्लाह का निज़ाम तो आ चुका है मुकम्मल, कोई आदमी महफूज नहीं है। अब देखिए, आप आज भी हलीमा खान और उज़मा खान और वो सारी नौरीन खान, फिर आपने अरेस्ट कर दिया है। उनका मुतालबा तो अपने भाई से मिलने का है, लेकिन नहीं मिलने देंगे। फिर सारे लोग फिर चले गए। उमर अयूब भी गया और हामिद रजा भी साथ किया, और दूसरे भी जो लोग थे पकड़े, उनको पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। कासिम न्याजी भी जो उसका भांजा है इमरान खान का, उसको भी पकड़ लिया गया। कोई उनके घर का तो कुछ आप वो रहने नहीं देते। कहते जी हम जाके छोड़ देंगे, चक्री के पास छोड़ देंगे, तो आप छोड़ देते हैं, फिर कल वो नहीं आएंगे। अगर वो बार बार आते रहे, यकीन मानिए यही मूव होगी जो हुकूमत को थका देगी। और रोज आए, फिर या तो पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है कहा है रिमा ने भी और उमर अयूब और दूसरों ने भी कि ठीक है भाई हमें अंदर ले जाओ। तो इस तरीके से कोई चाहेगा कि हलीमा के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरी बेटी मेरी बहन के साथ ये हो, कोई नहीं चाहेगा। तो ये इस मुल्क को वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। वसाइल वो कहते हैं जी डॉलर आ रहे हैं और फिर कर्जे भी मिल रहे हैं, फिर वो अमेरिका को भी कहते हैं हमने राजी कर लिया है। तो यही रजा तो ज़िया चाहता था। उसने जब अफगानिस्तान के अंदर खुदाई नूर या क्या था उसका, खुदाई नूर तो बलूचिस्तान का था, ये उनका अफगानिस्तान में जब फौजें आई तो वो ज़िया का तो बिल्ली के भागों
चिक्का टूट गया था, दिल्ली के भागों चिक्का टूट गया था। जवाब लाख तो उसी से 10 साल के लिए बन गया था, क्योंकि अमेरिका को उसकी जरूरत पड़ गई थी जवाब लाख की। मैंने उस वक्त छोड़ दिया वैसे, लेकिन वो 10 साल तो मिल गए। फिर परवेज मुशर्रफ था, जब 9/11 हुआ है तो मैंने अपने गांव में दूर दराज इलाके में जाते हुए बीबीसी पे जब सुना कि 9/11 हो गया है, तो मैंने कहा इसको भी 10 साल मिल गए, क्योंकि अमेरिका को जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का नुमाइंदा परवेज मुशर्रफ है। क्या हुआ, कभी किसी ने उसे पूछा? हम जेलों में सड़ते रहे क्योंकि कोई क़यादत नहीं थी जो उनका रास्ता रोक सके। हमारे मुल्कों में बदकिस्मती आ जाती है। यहाँ नवाज शरीफ ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कुछ आते आते इतना नीचे आ चुका है कि आज भी इवन फील्ड में वो आराम से नहीं बैठा। कौम एक लिहाज से भूल चुकी हुई है नवाज शरीफ को, वो उसकी सियासत खत्म हो गई है, उनकी भी सियासत भी खत्म हो गई है। अब ये सिर्फ एक कवाली पार्टी है जो सुबह से शाम तक लगी हुई है उनके पीछे। तो ये अब इस वक्त ये कहते हैं कि अमेरिका को हमें लड़ाने के लिए अफगानिस्तान से, लड़ाने के लिए ईरान से, लड़ाने के लिए चीन से, तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? तो इसलिए जरूरत पड़ गई है उसकी, हमारे कमांडर इन चीफ की। वो अमेरिका के लिए हाजिर है और हम उसके लिए हाजिर हैं। हम तो उसके लिए पीछे बैठ के, वो जो जाकिर मजलिस पढ़ता है तो पीछे उसके सोजी होते हैं, 10-12 सोजी होते हैं, उठा लेते हैं फिक्रे को। और यही हम सोजी हैं। कवाल तो इस वक्त शहबाज शरीफ है, हम सारे हमनवा हैं और सोजी हैं। तो ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। इस तरीके से आप ये कह देते हैं जी कि हमने चूंकि सड़क बनानी है चमन से क्वेटा और गवादर तक और फिर कराची तक, सड़कें तो बनती रहती हैं। ये तो पहले ही बनाई हुई थी, पहले भी गवादर बना है तो उसके बाद साथ सड़कें नहीं बननी थी। गवादर वही बंद रहना था, छोटा सा बंदरगाह, सारे मुल्क को मिलाना था, ले जाना था, चाइना तक, सिल्क रोड तक, इधर अफगानिस्तान में, रूस तक। तो ये सड़कें तो बननी थी। उसके लिए आपने लोगों का जो हक मार दिया, जो पेट्रोल जितना सस्ता है इस वक्त पूरी दुनिया पे, कि पूरा उसको पूछता कोई नहीं है। ईरान का सारा पेट्रोल आ रहा है पाकिस्तान में। यहाँ मुल्तान में 80% पेट्रोल पंप जो है ईरान का तेल बेच रहे हैं, और वो कोई कच्चा तेल नहीं होता, प्रोसेस किया हुआ है, अच्छा है, कीमती है, और उसको रोकता भी कोई नहीं है। क्योंकि वहाँ जो हमारे रोकने वाले हैं, हमारे कोर कमांडर कोटा साहब और फिर उनकी पूरी फौज, वो बॉर्डर पे रोक ही नहीं रहे उनको। क्यों नहीं रोक रही? ये वो जाने, आप नहीं जानना चाहते, कौम तो ना जाने। और भाई रोजाना जो है सैकड़ों हजारों टैंकर खड़े हैं सड़क के ऊपर, दिन दिहाड़े आ रहे हैं, पैसा जा रहा है उनकी जेबों में, हमारे कोर कमांडर क्वार्टर की जेब में, सबकी जेब में। तो ये एक मुल्क को चलाने का ये तरीका कि ये हमने सड़क बनानी है तो आपका हक मार लेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। आप कोई इसका बैठ के जो हल निकालना चाहें वो इकट्ठे होके बैठें। और आपकी तो हैसियत कोई नहीं है, आप तो अपनी सीट पे हार के आए खड़े हैं।
میاں نواز شریف اپنی ہار کے کیا کرے ہیں, مریم بی بی جو ہے وہ ہار کے آئی ہوئی ہے اپنی سیٹ. آپ تو مرہون منت ہے ان کے, آپ کے بس میں ہے ہی نہیں. دوبارہ الیکشن کرائیں اور اس کو جو مینڈیٹ جس کو ملے اختیارات اس کو دیں گے تو پاکستان بچے گا, پاکستان کا معاشی نظام بھی بہترین ہوگا, کیونکہ ہر ایک نے آپ پھر اپنے حلقوں کو نمائندگی بھی دینی ہے اور پیچھے جواب دہی بھی دینی ہے. بس اتنی بات میں کر سکتا ہوں.